جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ہند میں بے مثال ہے وہ آستاں، ہند میں بے مثال ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، ہند میں بے مثال ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما، خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ، خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ، خواجہ دین و ملت اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا، میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی، بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، لم یکد یراہ، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا، جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں، لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے۔ وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا، یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو۔ اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے پر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا۔ صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا، آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں، تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا۔ تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے، دعوت پیش کی اسلام کی، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد۔ تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین، یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا۔ الہذا جمعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں، اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیزو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی۔ دوستو میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے۔ میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی، اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ، یہ بکواس کرنا شروع کیا، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی۔ لوگوں نے کہا کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے، اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں،
اب رب تبارک و تعالی हुजूर की तारीफ में पूरी सूरत नाजिल करता है। इरशाद फरमाया जाता है, आपके चेहरे व दुहा की कसम, आपके चमकने वाले चेहरे की कसम, आपकी चमकती हुई काली जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। पूरी सूरह अल्लाह ने नाजिल फरमाई। मुशरिकीन ने जब भी भौंकना शुरू किया मेरे आका की शान में, दिफा के लिए आयतें नाजिल हुई हैं, रब्बे जुल जलाल की तरफ से बात आई है। मेरे अजीजों, यही तो शान मुस्तफ़ा है। हम और आप क्या दिफा कर सकते हैं? कुरान में खुद रब्बे जुल जलाल ने मेरे नबी की इज्जत का दिफा किया है। और आगे मैं आपको बताऊं, इतनी नहीं कई आयतें आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग जब सवाल करने आते और ऐसे ऐसे सवाल करते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह के सवालात किए जाते जो आम इंसान के लिए ना हो, और मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुदाई के दर्जे पर पहुंचाने की बातें की जाती, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब उनसे कह देना मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मगर ये कि मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब बात यहाँ भी आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए मेरे आका की औलाद कितनी थी, उनकी अज़वाज मुतहरात कितनी थी, हुजूर ने कितनी शादियां फरमाई, सहाबा की तादाद क्या थी, अशरे मुबशरा कितने थे, कौन थे, ये सब बातें हर मुसलमान को मालूम हो। इसलिए कि वो अगर अपने नबी की सीरत नहीं जानता तो फिर किसकी सीरत जानेगा? कौन है जो तुम्हारा आइडियल है, कौन है तुम्हारा नमूना अमल? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों में तीनों बेटे इब्तिदाई जिंदगी में इंतकाल फरमा गए, यहाँ तक कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी बेटे आपके बाहयात न रहे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, आखिर में हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 6 महीने से भी कम की थी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में कोई बाहयात ना रहे, बेटियां जिंदा रहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, ये चारों बेटियां बाहयात थीं। अब सुनिए, जब हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ, जाहिलाना रस्म व रिवाज अगर हमारे यहाँ पनप रही है तो वो भी समझ लें। बाज लोग ये समझते हैं कि बेटा ना हो तो नस्ल कैसे चलेगी, बेटा ना हो तो विरासत कैसे तकसीम होगी, वारिस कौन बनेगा। ये जहालत की बातें छोड़ दो, यही मक्का के काफिरों ने बातें बनाई। और सबसे बड़ी बात, अबू लहब ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद अक्ता है, अबतर है। अबतर का मतलब हुआ जिसकी नस्ल कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई। अबतर लफ्ज, अक्ता लफ्ज, उसने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तौहीन रिसालत के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया कि अब बेटे तो सब खत्म हो गए, अब कोई बेटा नहीं, नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल कट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई जालिम इस तरह की तानो तशनी करता है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हुए तो रब्बे जुल जलाल ने आपको कभी भी मलूल नहीं छोड़ा, और ना ही रब्बे जुल जलाल ने आपको कबीदा खातिर और गमगीन छोड़ा, बल्कि आपके दिल की तसल्ली के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक से एक इनामात की बारिशें फरमाई। अल्लाह ताला ने फौरन पूरी सूरह उतारी। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जालिम आपको कह रहे हैं नस्ल कटी है, आप अख्ता हैं, अबतर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, हमने आपको कौसर अता किया है। आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आपकी नस्ल कटी नहीं, आपके दुश्मन की नस्ल कटी हुई है। ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान हुआ, इन्ना शानिअका, ऐ महबूब बेशक आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पता ये चला गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जवाब देना और उन्हें बात करना ये सुन्नत इलाहिया है, ये रब्बे जुल जलाल का कानून है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है,
अब सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला, गुस्ताखी करने वाला, जिसने कहा था नस्ल कटी हुई, ढूंढ करके निकालो पूरी दुनिया भर में अबू लहब की औलाद कहाँ है, अबू लहब के बेटे कहाँ रहते हैं, उसकी विरासत किन में तकसीम हुई, आप ढूंढ करके निकालेंगे, कहीं आपको पता नहीं चलेगा उसकी औलाद क्या, उसके पोते पोते और नवासों तक भी औलाद नस्ल नहीं चल सकी, औलाद ही खत्म हो गई और उसका नामो निशान भी मिट गया। अबू लहब की जो मौत हुई इस हालत में हुई कि उसको सख्त तरीन बीमारी लाहिक हुई, यहां तक कि उसको एक गड्ढे में डाल करके उसके ही बच्चों ने पत्थर उस पर डाले थे, इतने पत्थर मारे गए थे कि उसका जिस्म पूरा पत्थरों से लहूलुहान था, वो खुद मिटा, उसकी औलाद नहीं रही। लेकिन आओ, मेरे रब्बे जुल जलाल ने मेरे मुस्तफ़ा की जो शान बयान की, इन्ना आतैना कल कौसर, उस आयत की तफसीर के एतबार से आज हिंदुस्तान नहीं, जयपुर राजस्थान नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, रसूलुल्लाह की आलो औलाद की खुशबू तुम्हें जरूर नजर आएगी। हर जगह सादात मौजूद हैं, सैयद हजरात मौजूद हैं। ये किसकी नस्ल है? ये फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल आज पूरी दुनिया में है, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद फरमाया है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर को कहने वाले कि नस्ल कटी है, वो खुद कट गए, मगर मेरे मुस्तफ़ा की नस्ल आज पूरी दुनिया में जिस तरह महफूज है, कायनात में किसी की नस्ल इस तरह से महफूज नहीं। एक बात याद रखें, हुजूर की जो नस्ल है आज, इस तरह की पूरी दुनिया में किसी और की नस्ल महफूज नहीं। सादात के शजरे महफूज हैं, इनके नसब महफूज हैं, और इनकी आल औलाद, इनके खानदान, इनके तमाम हसब और नसब आज भी महफूज हैं। जाओ सादात की खानकाहों में, वो सारे शजरे और तारीख लेकर बैठे हैं। मेरे अजीजों, इसी को तो कहा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद आज पूरी कायनात में है, और यही शान मुस्तफ़ा है जिसको आला हज़रत ने यूं कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान गिरामी, ये शान मुस्तफ़ा है। जब कभी किसी ने हुजूर की ज़ात पर उंगली उठाई तो जवाब कहां से आया? खुद खुदाए कदीर व जब्बार की तरफ से आया। अल्लाह ने कभी सूरे वद्दुहा उतारी, कभी सूरे लहब उतारी, कभी सूरे कौसर उतारी। अब कौसर का माना मैं बयान करके हुजूर की शान पाक के चंद आपके सामने झलकियां रख दूं। कौसर क्या चीज है? कौसर किसको कहते हैं? बाज लोग यही समझते हैं कौसर एक नाम है या फिर हौज़े कौसर है। कौसर की हजारों तारीफें हुई और इसकी कई तफासीर हैं, कई इसके मफहूमात भी मुफस्सिरीन ने बयान की, लेकिन जो हकीकत ज्यादा राजे है वो मैं बताता हूं। कौसर अरबी का लफ्ज है और अरबी में बलागत एक चीज है, ये सारे लोगों के समझ में नहीं आती। अरबी एक ऐसा लिटरेचर है कि एक एक लफ्ज आता है 70-70 मानों के लिए। कभी कभार एक एक ऐसे वर्ड हैं जो 1000 माने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अरबी में वुसात बहुत है, एक लफ्ज बोलकर कई माने मुराद लिए जा सकते हैं। अब कौसर क्या चीज है, अब मैं आपको बताता हूं। अरबी में एक लफ्ज है कसीर। कसीर ज्यादा को कहते हैं, कलील का अपोजिट क्या है? कसीर है। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट ब्लैक है, काला है। ये अपोजिट चीजों को मैं बता रहा हूं। कलील अगर कोई चीज है तो थोड़ी है, थोड़ी चीज को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और इसका अपोजिट क्या होता है? कसीर। समझ में आ रही बात? मैं समझा करके जाना चाहता हूं। कसीर कलील का अपोजिट होता है। अच्छा, अगर कसीर से भी ज्यादा बोलना है, मिसाल के तौर पर 10 के अपोजिट में 100 लेकर के आ गए, एक तरफ 10 रुपए है, ये कलील है, 100 रुपए क्या है? कसीर है। लेकिन हमको और भी ज्यादा बोलना है तो अरबी में उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। कसीर से भी ज्यादा हो तो अक्सर है। अक्सर कितना होता है उसकी लिमिट नहीं बयान की गई, वो लाख भी हो सकता है 10 के मुकाबिल में, 10 रुपये के मुकाबिल में लाख भी आ सकता है, वो अक्सर हो गया। अब अगर अक्सर से भी ज्यादा बोलना है तो उसको कौसर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कौसर कहा जाता है। एक है कसीर, उससे ज्यादा को अक्सर कहते हैं, उससे भी ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं?
कोसर। ये तीन जुमले तो याद रखो मुसलमानों, तीन बातें तो याद रखो, कसीर, अक्सर और कौसर। अब मैं ये आयत पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। ये कितना है कौसर, कैसे अंदाजा कर सकेंगे? मौला तूने हमारे नबी को क्या दिया, कितना दिया, इसी से आप अंदाजा कर ले। ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी जो दुनिया है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये पूरी रुए जमीन, इस पर मौजूद पूरे समंदर, इस पर मौजूद तमाम दरख्त, इस पर मौजूद तमाम चरिंदों परिंद और जानवर, इस पर मौजूद तमाम जिन्नात, बल्कि फरिश्ते, मलाइका, ये पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया, इसमें लाखों करोड़ों मखलूकात अल्लाह की आबाद है। कीड़े मकोड़े अलग, चरिंदों परिंद अलग, जानवर अलग, बहाइम अलग, समंदर की करोड़ों मछलियां अलग, जिन्नात की बे इंतहा तादाद अलग, याजूज माजूज की कसरत अलग, आसमानों में रहने वाली मखलूकात अलग, मलाइका, फरिश्ते, ये तमाम मखलूकात अलग। इन तमाम कायनात की चीजों को अल्लाह क्या फरमाता है? कुल मताउद दुनिया कलील, ऐ महबूब आप फरमा दें ये पूरी दुनिया कलील है। क्या है? पूरी दुनिया का सामान कलील है। इसमें करोड़ों इंसान भी आ गए, हम भी कलील हैं। पूरी रोए जमीन आ गई, ये भी कलील है। ये सारे आसमान आ गए, ये भी कलील है। ये सारी कायनात के हर जर्रे इसमें आ गए, ये कलील है। अब रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है ये पूरी कायनात कलील है। क्या है? कलील है। और इस कायनात से अगर कुछ ज्यादा होना चाहिए था तो वो कसीर है, और कसीर से भी ज्यादा चाहिए था तो अक्सर है, और अक्सर से भी ज्यादा चाहिए था तो वो कौसर है। ऐ महबूब हमने आपको ये पूरी कायनात में मौजूद ये कलील नहीं दिया, इससे थोड़ा ज्यादा कसीर भी नहीं दिया, उससे ज्यादा अक्सर भी नहीं दिया। ऐ महबूब हमने तो आपको कौसर दिया है, हमने आपको कौसर अता किया है। अजीजा ने गिरामे वकार, ये शान मुस्तफा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा हमने कौसर दिया है। इसीलिए शायर ने कहा था हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच हमा खूबा दारंद तू तन्हा दारी। ऐ रसूल पाक आपको अल्लाह ने हुस्न यूसुफ भी दिया है, और हुस्न यूसुफ यदे बैजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यदे बैजा भी आपको दिया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई भी दी गई। और फिर आखिर में शायर कहता है वो तमाम खूबियां जो अंबिया रखते थे या रसूल अल्लाह वो तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने अता की। और इसी को आला हज़रत फरमाते हैं जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान आज़मत में चंद मिसालें अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफ़ीउल्लाह का खिताब दिया, वह अल्लाह के सफ़ी हैं। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम कसरत बुका में मशहूर थे, यानी आप कसरत से रोया करते थे। काफ़ी सालों तक आपने गिरिया बाजारी की, और ये कसरत बुका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह के खिताब से सरफराज हुए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नजाबत आपको दी गई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने नजी भी बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया। जो उन नबियों को सिफ़ात दी गई वो तमाम तर सिफ़ात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में अता की गई। वो तमाम खूबियाँ जो अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया को दी वो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। अब चंद मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, इनके वाक़यात अक्सर सुनाए जाते हैं और सुनते भी हैं आप। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक बात मैं अर्ज करता हूँ, आप
कोहे तूर पर जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे खुले आंखों देखना चाहता हूँ। कुरान पाक में है, रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, लन तरानी, ए मूसा तू हरगिज मुझे नहीं देख सकेगा। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो रब ताला ने फिर किस अंदाज में बुलाया, फखलअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ मूसा अपनी चप्पलें उतार दें, अपने नालैन उतार दें और कोहे तूर पर आए। कोहे तूर मिस्र की वादी सीना में मौजूद एक पहाड़ी का नाम है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर चढ़ते हैं, वहां पर हुक्म क्या होता है, करीब मौजूद एक दूसरी पहाड़ी पर एक दरख्त है, उस दरख्त पर आप देखते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त पर देखते रहे। रब ताला ने अपनी जाते मुबारका की तजल्लियात में से सुई के नाके से भी कम हल्की तजल्ली उस दरख्त पर नाजिल फरमाई। और रिवायात ये बताती हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, अल्लाह ताला ने जब उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली का इजहार फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा करके गिर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम गश खा करके गिर गए और पूरा पहाड़ जल करके राख हुआ। आज भी वो पहाड़ जला हुआ मौजूद है, हमने देखा है। और उस दरख्त का साया हर पत्थर पर पड़ गया। पत्थर को 100 टुकड़े करें तब भी उस दरख्त का साया उस पत्थर पर आज भी नजर आता है। ये था सुई के नाके के बराबर हल्की तजल्ली जो रब्बे जुल जलाल ने कोहे तूर पर नाजिल फरमाई। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आप लाइन उतार करके आए और फिर बहुत हल्की तजल्ली दिखाई गई। इतना ही देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले आंखों से नहीं देखे, अभी पलक झपकते हुए ही आपने देखा था और हालत ये हो गई। अब सुनिए, वापस मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जब आप अपनी कौम के पास आते हैं, फरमाया गया अगर कोई आंखों में आंखें डालकर मूसा अलैहिस्सलाम को देख लेता तो उसकी आंखें चली जाती थी। आंखों में इतना नूर था, इतना जलाल था। और फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों की तासीर और दूरबीनी का आलम यह था कि निहायत ही सख्त तरीन रात, काले अंधेरे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर, यानी तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर, अगर रात के वक्त किसी काले पत्थर पर काली चींटी रेंग रही हो, मूसा अलैहिस्सलाम उसे आसानी से देख लिया करते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर रात के वक्त पत्थर पर रेंगने वाली काली चींटी को देख लिया करते थे। ये किस बात का कमाल था, कोहे तूर पर जो हल्की सी तजल्ली आपने देखी थी, ये शान मूसा है। अब आओ 26 रजब की वो तारीख याद करो जब शबे मेराज होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया जाता है। किस शान से जिब्राइल को उतारा गया और हुक्म दिया गया, ए जिब्राइल जाओ अपनी पेशानी को मुस्तफ़ा के तलवों से लगाओ। और उनकी पेशानी की ठंडक पाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फिर कहा गया, या रसूल अल्लाह, आसमानों पर आपको बुलाया जा रहा है और रब्बे जुल जलाल आपको अपने कुर्ब की मंजिलें अता करता है। हजरत जिब्राइल के साथ मेरे मुस्तफ़ा की शान से गए, इस तरह से नहीं कि आपको चप्पल उतारने का हुक्म आया हो, आपसे कहा गया हो कि नालैन उतारें, बल्कि यूं हुक्म हुआ कि आपके लिए बुराक सवारी भी भेजी गई और फिर उस पर बिठाया भी गया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा में पहले ले जाया गया, जमजम से आपके सीने मुबारका को धोया गया, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर लाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे। तो जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए, 1,24,000 कम व बेश अंबिया वहां सफों में मौजूद थे। सबने मेरे आका का इस्तकबाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीधे मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले गए और अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई। वो जो नमाज थी वो अल्लाह बेहतर जाने। मेरे अजीजों,
नमाज के बाद हर नबी ने आपकी शान में कसीदा पढ़ा, मेरे आका की तारीफ बयान की, और यहाँ होने के बाद आसमानों का सफर किया, सातवां आसमान देखे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख सबके नजारे किए, और उसके बाद वो मकाम भी आया जहां जिब्राइल भी आगे जाने से मना करने लगे, अब मेरा मकाम नहीं है, आप जाएं मेरे मुस्तफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकाम का भी सफर तय करते हुए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इतना करीब हुए कि कुरान कहता है फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, 2 तीरों से भी कम का फासला रह गया था, 2 हाथ से भी कम का फासला रह गया था रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, पूछो रसूल पाक ने किस शान से देखा, अपने माथे की आंखों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नारे तकबीर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह को हाजिरी दी और ज़ात इलाही को देखा। इस अंदाज से देखा कि कुरान कहता मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना आपकी पलक झपकी, ना आपने आंख बंद किया, बल्कि ज़ात इलाही को पूरे माथे की आंखों से भी देखा, और जितना देखा वो अल्लाह बेहतर जाने, मेरे मुस्तफ़ा जाने। वापस जब तशरीफ लाए, एक बार नहीं 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा था। आपको वाक़या मालूम है, मैं तफसील में नहीं जा रहा मेराज के वाक़े में। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल की बारगाह से वापस आए, ऐ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर एक हल्की तजल्ली रब्बे जुल जलाल की देखी जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल ये था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफ़र है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफ़र, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नज़ारा करना, और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता है मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीज़ों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ़ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई
जहाज का वजूद नहीं था, लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है, तो यहां मसाफत किस बात की। मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी और कायनात का वक्त इतना ही रहा। कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन। किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था, आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था, तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाई है, मेरे आका के सदक़े में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफ़ा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए ज़मीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे मुस्तफ़ा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हम आगे कहते हैं सफ़ीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमावोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप
महसूस करते हैं कि यहाँ पर दुनिया का एक दस्तूर है। ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलेंटियर यहाँ पर तरतीब दे रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए, और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे, इसीलिए। चले मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। आपके यहाँ शादियाँ होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है, या हॉल में होती है आपके यहाँ, हॉल में बहुत सारी चीज़ें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियाँ दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने, और उसके बाद रुखसती हो गई। दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों, सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले पहले हाल बेहाल भी होता है, बहुत सारी जगहों से सारी ज़ीनत और सारी ज़ेबो आराइश ख़त्म कर दी जाती। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं रखते? कहा अब दूल्हा गया तो फिर अब ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत? ये दूल्हे के लिए सजाई गई थी। दूल्हा आया, निकाह भी हुआ और चला गया, अब हम ये सारी लाइटिंग निकाल देते हैं, फूल निकाल देते हैं, कुर्सी हटा देते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। दूल्हा आने से पहले सजाया गया और दूल्हे के जाने के बाद हटाया गया, यही चलता है। अब मैं आपको बताऊं, हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात में पहले ज़मीन को बिछाया, फिर आसमान का छत ताना और दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, सितारों से जगमगाया गया, चांद और सूरज को लाइटिंग में भेजा गया, और 1,24,000 नबियों को बाराती बनाकर भेजा गया। ये सारा निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए हो रहा था। ये सारा निज़ाम रसूल पाक की आमद के लिए चल रहा था। इसीलिए तो हज़रत इदरीस भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। मूसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। ईसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद नबी आने वाले हैं। सारे लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। वो सब बाराती के तौर पर हुजूर पाक की आमद का इंतज़ार करते हुए अंबिया आए। मेरे अजीज़ों, ये ज़मीन का फर्श और बिछोना, या आसमान का छत, और ये दरख्तों के कुमकुमे, ये समंदरों का लहलहाना, ये खूबसूरतियाँ, तारों का जगमगाना, चांद और सूरज का झिलमिलाना, ये सारी चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए थी। अब बात मैं आपको बता रहा हूँ, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लौला का लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दी। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता, न मैं आसमानों को बनाता, न ज़मीनों को बनाता, और ना ही दुनिया को बनाता। ये सब चीजें ए रसूल आपके लिए बनाई गई। अब हम समझते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई। जमीन बिछाई गई, आसमान का छत ताना गया, ये सब सितारे झिलमिला रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन जलवा फरोज हुआ और मदीना तैयबा में रूपोश भी हुआ। 63 साल की जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर तमाम इंसानों के सामने गुजारी, और उसके बाद जब मेरे आका तशरीफ ले गए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, दुनिया का तो दस्तूर ये है कि दूल्हा चला जाए तो कुर्सी हटा दी जाती है, दूल्हा चला जाए तो ज़ेबो ज़ीनत ख़त्म कर दी जाती है, और लाइटिंग हटा दी जाती है, फूल निकाल लिए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफ़ा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे, सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा।
آپ یہ ہمارا مسکرانا، یہ ہمارا چہچہانا، یہ سب مصطفیٰ کی بدولت ہے، انہی کی برکت ہے۔ یہ زمین جو باقی ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف سلطنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہاں ایک بات یہ بھی، کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کے دوران کہا کہ موجودہ سرکار ایسی ہے، موجودہ سرکار، گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں، آپ نے برجستہ کہا سرکار کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، سرکار صرف مدینے والے تاجدار کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جملے بدلو، اور آج بھی اگر حکومت ہمارے سینوں پر کسی کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں آپ، 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور نہ ہی ان کے زمانے میں ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بحمداللہ ہمارے گھر کے ہر بچے میں یہ جذبہ موجود ہے، نام لے کر کے تو دیکھو بچہ گردن دینے کو تیار ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو صرف سروں پر حکومت نہیں کرتا، دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادیب لائل پوری کہتا ہے، ایک شاعر ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر۔ ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کے رخسار پر تل، اس پر سمرقند اور بخارا 2 شہر اس نے بخش دیے، انعام میں دے دیے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو ہیں تیار، سر اپنا ہتھیلی پر لیے ہیں کرنے کو نثار۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو ایسی ہو کہ روح پر بھی ہو، قلب پر بھی ہو۔ آج میں شان مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کروں، دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ کا شہر تو ہیریٹیج کہلاتا ہے، بادشاہوں کا، راجے مہاراجاؤں کا شہر ہے، اور ہو سکتا ہے تاریخ میں تو پڑھا ہوگا، آپ تو نہیں دیکھا ہو، بادشاہ کی کرسی لگتی ہے اور اگل بغل میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وزیروں کا بھی دربار ہوا کرتا ہے، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا ہے تو وزیر نہیں بیٹھتے، وزیر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی سمجھی جاتی۔ بادشاہ جب کرسی پر ہے تو اس کے پہلو میں وزیر ہوتے ہیں، اور جب تک وزیر بیٹھے ہیں، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا کہ جب تک وزیر پہلو میں بیٹھے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کی بادشاہت قائم ہے، کوئی بھی رعایا آئے اور سوال کرے، اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتے، یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزو، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
शहंशाह कौनैन हैं, बादशाह आजम हैं। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा वजीर की तरह आपके साथ साथ रहते, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़ाए नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खतरा के नीचे जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें, हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं, चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हजरत उमर दफन होते हैं, और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हजरत आयशा कहती है मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हजरत उमर ही वहां दफन हो, और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरा पाक में मेरे आका आराम फरमा है और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना यह चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर यह कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है और बगल में अबू बकर और उमर वजीर बन करके आज भी तशरीफ फरमा है। अज़ीज़ा ने मुकर्रम, बादशाहत आज भी कायम है और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमा है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब सूर फूंका जाएगा कयामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किसकी शान से बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की हयात से एक चीज़ ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम व करम में बेमिसाल नबी, सजूद व सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि कारून जो बहुत खजानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके ज़माने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फ़र्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब कारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊँटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे। इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज़ है, कभी किसी के यहाँ आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ ये करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, कारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में कारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सजा है। मेरा मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, जिना बहुत दूर की चीज है।
اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی، کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینہ طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا۔ تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا، آپ شریف ہیں، ابن شریف ہیں، ابن شریف ہیں، آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں، زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے۔ وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا، میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی، دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا، حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا۔ میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ دوبارہ زمین پھٹ گئی، اب کمر تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا، اور اس کے بعد پھر چلانے لگا، رونے لگا اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے۔ ایک طرف عطا ہی عطا ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے عزیزو سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی۔ ایک ہے میرے مصطفیٰ آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا، لالچ۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا، پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، اب گردن تک چلا گیا، اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اب سنو میرے عزیزو،
میرے آقا نے اب کیا کیا؟ اب کیا کیا؟ اب صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے، 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا، جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے، اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے ہیں میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے، کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی، اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے، لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی، اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ، سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن
लोगों ने कहा रसूल पाक की बारगाह में जब कभी कोई आता तो एक ही दरवाजा था। लोगों ने ये कहा इधर एक दरवाजा और हातिम ताई के 7 दरवाजे। किसी आशिक ने क्या खूब जवाब दिया, ऐसा कैसा हो सकता, सखी हैं, हातिम ताई से बड़े सखी हैं, उसके तो 7 दरवाजे थे, इनका तो एक दरवाजा था। आशिक रसूल ने कहा मियाँ हातिम ताई के 7 दरवाजे इसलिए थे कि एक दरवाजे से पेट नहीं भरता साइल का, दूसरे दरवाजे पर जाता, दूसरे में पेट नहीं भरता, तीसरे पर जाता, तीसरे में पेट नहीं भरता, चौथे में जाता। वो 7 दरवाजों के चक्कर इसीलिए लगाता कि एक दरवाजे पर पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा का एक ही दरवाजा ऐसा है, इतना दिया जाता है कि अब साइल के पास दामन भी तंग होता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। ये कहना के तो उम्मती बेसहारा है बेचैन वो दर्द फुरकत का मारा। ये कहना मदीने से वो दूर रह कर फिरे दर बदर सुबह शाम अर्ज करना। मज़ार मुक़द्दस पे जब हाज़िरी हो मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना। तड़पता है दिल और बरसती है आंखें, बराए ज़ियारत तरसती है आंखें। तड़पता है दिल और बरसती है आंखें, बराए ज़ियारत तरसती है आंखें। ये कहना बसारत से महरूम है वो मेरी हालत गम तमाम अर्ज करना। मज़ार मुक़द्दस पे जब हाज़िरी हो मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना। ये कहना गुनाहगार बदकार है वो खताओं पे लेकिन शर्मसार है वो। निगाहे करम का तलबगार है वो। पिला दो मोहब्बत का जाम अर्ज करना। मज़ार मुक़द्दस पे जब हाज़िरी नारे तकबीर हो तैबा हो मक्के से तैबा की जानिब रवाना नजर आशिकाना हो दिल आरिफाना। अदब से सरेरा पलके बिछाना, अदब से सरेरा पलके बिछाना। अकीदत से फिर तुम सलाम अर्ज करना। अरे हाजियों तुम हरम जा